तो कल हमने देखा था सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, ओके, एंड ऑल्सो वी हैड सीन मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट. We can design multiple input multiple output by using single input single output. Only we have to duplicate the hardware. Only by duplicating the hardware we can design multiple input multiple output. Okay, so I told you this, we had implemented this. What this delay stands for here means this delay is nothing but when we are giving x of 0, okay, then after a delay of one cycle, one clock time, the next input will be present here. Okay, तो कन्वेंशनल सिस्टम में डिले का provision will be like this, and in this parallel processing it will be like this. Okay, then we had seen L level parallel system, then parallel processing. तो इन सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग, इसको हम सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट को, या फिर हम पाइपलाइनिंग प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं इसको. सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट इज नथिंग बट योर पाइपलाइन प्रोसेसिंग. ओके, तो इन पाइपलाइन प्रोसेसिंग व्हाट हैपन व्हेन वी आर गिविंग इनपुट, इट विल प्रोसेस इन टाइम in t clock, and then at the output we will be getting output, then again next input will be processed in t time, like this. So t clock is equals to t sample equals to critical path time equals to t, means one sample at a time, means this single input single output system will process one sample at a time. Okay, now when we will duplicating the hardware, we will be getting multiple input multiple output. Now in multiple input multiple output system, two samples. Now this system is of two block size. कितना है इसका? The block size of this system is 2. So L equals to 2 we can say. तो in t clock cycle 2 samples are generated, right? So we can say that t clock equals to t, critical path time is t, and t sample is t clock by 2. Now see here, in pipelining system t clock is equals to t sample. In pipelining system t clock equals to t sample, but in parallel processing t clock is not equals to t sample. T clock is not equals to t sample. Okay, now this is the difference between pipelining and parallel processing. Then this difference you have to keep it in mind. Okay, now we had seen two level parallel processing system. This is even port, this is odd port. Always on this port even samples will be giving, and on port B we are giving odd samples. Okay, now single input single output is the example of pipeline system. If we further want to increase sampling rate, then we should go towards the concept of parallel processing. We had seen this yesterday, है ना? Single input single output है, x of n is the input, y of n is the output, then each sample is processing in t clock period. Now this is your multiple input multiple output. This is nothing but the duplication of this single input single output. So here we are giving input samples x of 1 x of 2 up to x of n, then outputs are y of 1 y of 2 up to y of n, like this. Okay, इसमें किसी को कोई डाउट है? Yes, no ma'am. okay. लास्ट टाइम हमने पैरेलल प्रोसेसिंग का एक FIR फिल्टर का इक्वेशन हमने डिज़ाइन किया था, राइट? यही है ना हमारा डायग्राम पैरेलल प्रोसेसिंग का? Yes ma'am. ओके, ठीक है. सी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लॉक प्रोसेसिंग. पैरेलल प्रोसेसिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लॉक प्रोसेसिंग.
Why block processing? Because at a time it will process a block of samples. Okay, at a time it will process 3 samples, 2 samples, more than one sample is block processing. Okay, if there is only one sample, then it comes under pipeline processing. If there are more than one sample, then it comes under parallel processing, like this. Now again there is one difference in pipelining and parallel processing. ओके तो पाइपलाइनिंग में क्या हो रहा है? इन पाइपलाइनिंग व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिवाइडिंग द टास्क. व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिवाइडिंग द कंप्लीट टास्क इनटू सब टास्क, है ना. तो हम उसमें क्या कर रहे हैं पाइपलाइनिंग में? मैंने बहुत पहले एक डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाया था. ट्रांसपोजिशन जो था हमारा, ट्रांसपोज हमने किया था. तो जो एसएफजी का ट्रांसपोज किया था, दैट इज़ नथिंग बट योर पाइपलाइनिंग, है ना. तो उसमें एक कंप्लीट चेतन इतना बड़ा हा क्यों लिखा है? अच्छा, ब्रेक के बारे में. ओके ठीक है, मैंने अभी देखा. ओके सॉरी फॉर सॉरी इसलिए ना मुझे ये चाहिए नहीं रहता, फिर मेरा ध्यान इधर जाता है बार बार. ओके कहाँ थे हम? ओके हाँ, पाइपलाइनिंग में यस. तो हमने वो पाइपलाइनिंग वाला एक डायग्राम देखा था, है ना. तो उसमें हमने क्या किया था कि वी आर डिवाइडिंग अ सिंगल टास्क इनटू मल्टीपल टास्क. हाँ, तो उसमें हमने क्या किया था, एक लैच लगाया था, राइट. आपको याद आ रहा है क्या? वो डायग्राम याद आ रही है आपको? एक सिंपल सी डायग्राम एक्सप्लेन की थी. तो व्हाट वी आर गिविंग, वी आर गिविंग द प्रोसेस डेटा इनटू दैट लैच और दैट डिले. लैच और डिले इज द सेम. And then next, when next sample comes, then that data which is saved in latch or delay, that will goes to the next task, and like this, है ना. तो जैसे हमें पाइपलाइन सिस्टम सपोज वी वांट टू डिजाइन, देन इन पाइपलाइन सिस्टम we have to use that delay, we have to use that delay block. Why to use delay? Because delay will break the task into two, means delay will break the main task into सब task. एक हमारे पास सपोज मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है हमारा, हमें मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन करना है, एंड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन विल टेक 10 माइक्रो सेकेंड्स और 10 मिली सेकेंड्स. ओके, सपोज इट विल टेक 10 यूनिट टाइम. तो we can divide that multiplication process into two parts. Suppose multiplication m will take 10 unit time, then we can divide that multiplication task into two subtasks. Suppose one task will take 7 unit time, and the other task will take 3 unit time, like this, है ना. तो जब भी हम टास्क को डिवाइड करते हैं, then it will becomes your pipeline system. When task is getting divided, then it is pipeline system, or when we are putting delay, then it is pipeline system. ठीक है, ये समझ में आ रहा है? इसका थोड़ा सा डिटेल में मैं बाद में और प्रूफ के साथ एक्सप्लेन करूँगी आपको. ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है, तो हमने ब्लॉक प्रोसेसिंग, ये इक्वेशन था हमारे पास FIR सिस्टम का. देन वी हैड इम्प्लीमेंटेड दिस यूजिंग पैरेलल प्रोसेसिंग. ओके, now see here, now this is general approach for block processing, है ना. डायग्राम देख लो एंड टेल मी क्या समझ में आ रहा है इसमें आपको. yes, anyone? मैम जो अपन ने ब्लॉक बनाया था, दो मतलब ब्लॉक प्रोसेसिंग वाला जो पूरा डायग्राम बनाया था, वो पूरा मीमो वाला ही बनाया था ना. हाँ, जिसमें इनपुट मीमो के यस. ये आ रहे थे और आउटपुट ही आ रहे थे. राइट राइट. see here, there are 3 blocks in this diagram. There are 3 main blocks. Okay,
first is your serial to parallel converter. What is the use of this block? It will convert input sample x of n into 4 samples. It will convert your serial data into parallel, serial to parallel converter. Okay, because why the need of this converter? Because here MIMO system, for MIMO system we will be giving inputs separately, right? That's why this x of n should be converted into parallel, है ना? MIMO में हम क्या कर रहे हैं? पैरेलली हम डेटा इनपुट कर रहे हैं. MIMO में जो डेटा है वो पैरेलल है. Multiple inputs are there. That's why here it is necessary to convert single input into multiple inputs. तो serial to parallel converter क्या करेगा? Single input to multiple input करेगा. And sampling period कितना है इसका? Sampling time कितना है इसका? T/4. Okay? Why it is T/4? Why it is T/4? 4 है इसलिए. Yes, right, very good. Because we want to convert that input into four different inputs, right? Means single input to 4 input करना है हमें. Conversions serial to parallel है 1:4 करना है. If it is 1:3, then it should be sampling period should be T/3, right? If it is 1:6, then sampling period should be T/6. yes, T/6. If these are these parallel lines are 6, then it should be T/6 like this. Okay, ये समझ में आया आपको डिफरेंस, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, सीरियल टू पैरेलल कन्वर्टर यूज करके हम क्या कर रहे हैं, जो ये इनपुट है जो हम सीरियली इसको दे रहे हैं. एक्स ऑफ एन यानी क्या है? सैम्पल्स है. 0 1 2 3 लाइक दिस सैम्पल्स, यानी 1 0 1 0 लाइक दिस, ये फैशन में वो सैम्पल्स दे रहे थे. व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर converting those serial samples into parallel samples. Okay, now these parallel samples, 4 samples, x of 4k. Now what is this k? Have you understood what is this k? k क्या है इसमें? मैम एक राउंड ऑफ इनपुट्स, मतलब अपन ने अभी देखे थे तो पहला राउंड में अगर k0 रखे तो y0 y1 y2 y3 मिलेगा. फिर सेकेंड राउंड में फिर y5 6 7 8 मिलेगा. ऐसा कॉन्स्टेंटली 4 बढ़ रहे, मतलब 4 के इंक्रीज हो रहे हैं. फिर 4 ब्लॉक होंगे, एक बार में 4 जाएंगे इसलिए. Yes, means we can say it's a clock period, right? 4k plus 1, 4k plus 2, 4k plus 3 like this. Okay, now these inputs we are giving at the input of this multiple input multiple output system. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इन MIMO system there are MIMO system के अंदर क्या है, what is inside that MIMO system? सेट ऑफ सीसो. ये सेट ऑफ सीसो है ना. तो सीसो कितने हैं यहाँ पे? 4. हाउ मेनी सीसोज आर देयर? 4, है ना. ये जो x of 4k will goes at the input of single input single output, then it goes here like this. तो हमें आउटपुट कितने, 1 मिनट, हाँ मैं पहले चार्जर लगा दूँ, 1 मिनट. आप खुद के नोट्स बना रहे हो क्या वीएसपी के? मैंने तो शेयर किए हैं नोट्स, बट यू हैव टू प्रिपेयर योर ओन नोट्स, है ना. अभी खुद के नोट्स बनाओ. पढ़ाई शुरू की कि नहीं? अभी तो रिजल्ट भी लग गया. पढ़ाई शुरू की आपने? क्या
हार्दिक, मैम साथ में आप जो पढ़ा रहे बस वही हो जाता है उसका। हो जाता है। अरे नहीं ना, तो भी आपको पढ़ना है। मैंने बुक भी तो ये किया है ना, अपलोड किया है ना बुक गूगल क्लासरूम पे, तो थोड़ा पढ़ लिया करो, थोड़ा डिटेल में किया करो ना। और थोड़ा, और अगर नहीं समझ में आता तो यू कैन आस्क मी। ये तो ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ आपको, नोट्स भी दे रही हूँ, बट इवन दो आप थोड़ा सा स्टार्ट करो। अच्छा, और एक चीज़ मैं भूल जाती हूँ फिर बाद में। किसी के पास क्वेश्चन पेपर्स है क्या वीएसपी के, यूनिवर्सिटी के, डाउनलोडेड या फिर किसी से लिए हुए? मुझे हम वीबीएस ऐप पे रहते हैं। हाँ हमें VBS ऐप है, उस पे सभी सब्जेक्ट के ऐप है। हाँ ठीक है, मेरे पास नहीं है वो ऐप। आप कोई डाउनलोड करके मुझे भेज सकते हैं? हाँ मैम। हाँ मैम। है ना, प्लीज़ थोड़ा देख ले, एक भेज देना। कोई, कौन भेजेगा, नेहा या निकिता? हाँ मैम। नेहा, ओके ठीक है। तो ओके हम मैम। ये मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम क्या कर रहा है, ये जो इनपुट आ रहा है, दैट दीज इनपुट्स आर पैरेलली प्रोसेस्ड इन दिस सिस्टम एंड द particular in that, suppose if we are giving x of 4k, then it goes to single input single output. This CISO will process this input sequence and then it generate the output like y of 4k, y of 4k plus 1, 4k plus 2 and 4k plus 3. Okay, now these four outputs will goes to the input of parallel to serial converter. Parallel to serial converter, and here we will be getting y of n. Now here if we want to convert serial to parallel or parallel to serial, then this clock period should be t by 4. Means this system gives you the serial to parallel converter as well as parallel to serial converter. Okay, serial to parallel converter as well as parallel to serial converter. Okay, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, serially we are giving input and here serially we are getting output. So it is your serial input, input and serial output only. Now if you want to convert it serial to parallel, then this block we have to consider this serial to parallel converter and this MIMO system like this. Okay, so it acts as a serial to parallel and parallel to serial converter. इसमें किसी को कोई डाउट है? This is a block diagram of serial to parallel converter. डाउट है, yes or no? Okay. ठीक है, एक्चुअली ये सब अभी ना मेरे पास थोड़ा सा स्कैटर्ड इसमें हो गया, वे में हो गया, हैंड रिटन नोट्स और वो सब। कुछ मैंने NPTEL के लेक्चर्स किए, उसमें से मैंने ये हैंड रिटन नोट्स बनाए। ठीक है, ओके okay. Now for time being, refer this diagram, block processing. Okay, now see here, in parallel system this t clock is not equals to t sample. Okay, whereas in pipeline system t clock equals to t sample, as I told you. And this figure shows you the serial to parallel and parallel to serial converter. Okay, now one question arises, why use parallel processing when we can use pipelining equally well? Why to go towards parallel processing, है ना?
Why do we want to duplicate so many copies of the hardware? Yes, anyone? हम टाइम रिक्वायरमेंट कम हो जाता है. Yeah, reduced computation time, na? To reduce the computation time, right? Okay, for that, let me show you this diagram. If question ask in exam ki why to prefer parallel processing, okay, then for that you can explain this. अच्छा, इसके बाद हमारे टॉपिक्स रहेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग फॉर लो पावर, एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू पाइपलाइनिंग प्रोसेसिंग एंड देन पाइपलाइनिंग प्रोसेसिंग फॉर लो पावर. और पैरेलल प्रोसेसिंग फॉर लो पावर इसका एक डेरिवेशन भी है, तो वो आता है एग्जाम में, है ना? तो इसके बाद हम वो डेरिवेशन कर लेंगे. ओके, नाउ ये क्वेश्चन जो है अभी हमने देखा, तो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. दिस डायग्राम शोज यू अ चिप सेट ऑफ pipelining. This is chip 1, this is chip 2. Then this chip 1 can be considered as a transmitter, this chip 2 can be considered as a receiver. Okay, now see here, there is one output pad for this chip 1, that is transmitter, and there is one input pad for this chip 2, that is receiver. Okay, now in this system there is a delay. तो delay कहाँ पे है? ये चिप 1 टू आउटपुट पैड में जो डेटा जाएगा, दैट डिले, आउटपुट पैड डिले प्लस इनपुट पैड डिले प्लस दिस वायर डिले. ये जो कम्युनिकेशन है ना, दिस कम्युनिकेशन, दिस वायर डिले इज ऑल्सो देयर. सपोज दिस कंप्लीट डिले, दिस टोटल डिले इज इक्वल्स टू 8 nanosecond. Okay, now to transfer one sample from chip 1 to chip 2, it must go from output pad to input pad through a wire, है ना? अगर हमें चिप 1 टू चिप 2 डेटा ट्रांसफ़र करना है या सैम्पल ट्रांसफ़र करना है, देन दिस सैम्पल शुड गो फ्रॉम दिस चिप 1 टू दिस आउटपुट पैड, देन दिस ट्रांसमिशन लाइन और दिस cable or wire, and then input pad, and then chip 2. Okay, this whole process requires 8 nanosecond. Okay, now see, if critical part time, that is CPT of chip 1 is less than 8 nanosecond, as well as chip 2, critical part time of chip 2 is also less than 8 nanosecond. तो let us say critical part time as 6 nanosecond. Okay, now see, एक sample गया यहाँ पे chip 1 to chip 2, then next sample will take again 8 nanosecond to arrive. next sample कब आएगा? after 8 nanosecond. Okay, तो ये जो chip 2 है, तो chip 2 का जो टाइमिंग है 2 nanosecond, 2 nanosecond will be the ideal time of this chip 2. ओके, दिस 8 nanosecond, नेक्स्ट जो सैंपल है हमारा 8 nanosecond में आएगा, और क्रिटिकल पार्ट टाइम कितना है? 6 nanosecond, ये दोनों चिप का. तो ये चिप 2 क्या करेगा? 2 nanosecond तक कुछ भी काम नहीं करेगा. इट हैज़ टू वेट फॉर नेक्स्ट सैंपल टू कम, राइट? अगर इसमें हमने क्रिटिकल पार्ट टाइम को ऑप्टिमाइज भी किया, इफ़ यू ऑप्टिमाइज क्रिटिकल पार्ट टाइम फ्रॉम 6 nanosecond टू 5 nanosecond, इवन हमारा आइडियल स्टेट जो है, यानी वेटिंग पीरियड जो चिप 2 का है, तो वो कितना है? 3 nanosecond इन दिस केस ऑल्सो. देन अगेन दिस चिप 2 हैज़ टू वेट फॉर 3 nanosecond. ओके, तो what we are doing, what we are trying, we are trying to reduce the critical part time. But if we achieve critical part time reduction, but even though we have to wait for next sample to come. Okay, now this is the drawback of this pipelining processing. Okay, this is the drawback. Have you understood this? Have you मैम, तो understood? जो वायर का ट्रांसफर है 8 nanosecond का, उसको रिड्यूस नहीं किया है ट्राई, या वो है उसके नीचे नहीं जा रहा है? क्या? मतलब चिप के अंदर का सीपीटी रिड्यूस करने का ट्राई किए, ऑप्टिमाइज करने का ट्राई किए, तो वेटिंग टाइम बढ़ जा रहा है. हाँ. तो वेटिंग टाइम इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वायर का जो ट्रांसफर है उसमें 8 nanosecond लग रहा है.
नहीं, वो टोटल ना, टोटल ये सभी का, ये चिप 1 चिप 2 वायर सब मिला के 8 नैनो सेकेंड है। समझ में आया? ये तीनों मिला के 8 नैनो सेकेंड है। ठीक है, और ये वायर का तो हम कम नहीं कर सकते ना, वायर का कैसे कम करेंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? क्रिटिकल पार्ट टाइम रिड्यूस करना। हाँ, 1 मिनट, हाँ फिर से रिपीट करती हूँ। ओके, now see, कंसिडर अ चिप सेट। एक चिप सेट है, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं। सपोज दिस इज आर ट्रांसमीटर एंड दिस इज आर रिसीवर। ओके, तो ट्रांसमीटर में एक चिप है, रिसीवर साइड में एक चिप है। नाउ वी आर ट्रांसमिटिंग samples from this chip 1 to chip 2, right? But while transmitting the samples from this chip 1 to 2, that sample should go from this chip 1 to this output pad, then this transmission line or this wire, and then it goes to input pad and then the desired location, that is chip 2. Okay, so this delay will be 8 nanosecond. You know, this delay will be 8 nanosecond. And what we are saying, that critical path time for both of these chip 1 and chip 2, this is less than 8 nanosecond. It is less than 8 nanosecond, है ना? तो सपोज फॉर एग्जाम्पल एक सैंपल हमारा चिप 1 टू चिप 2 गया, तो इसने लिए, एक फर्स्ट सैंपल ने लिए 8 नैनोसेकेंड, राइट? फर्स्ट सैंपल कितना ले रहा है आपका? 8 नैनोसेकेंड ले रहा है। और हम क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों चिप का जो क्रिटिकल पाथ टाइम है, दैट टाइम इज 2 नैनोसेकेंड, सॉरी 6 नैनोसेकेंड। क्रिटिकल पाथ टाइम इज 6 नैनोसेकेंड। ओके, देन दिस सेकेंड सैंपल विल गो आफ्टर 8 नैनोसेकेंड। पहला सैंपल ने 8 नैनोसेकेंड ले लिया, फिर सेकेंड सैंपल कितने टाइम के बाद जाएगा, कितने डिले के बाद जाएगा? ये 8 नैनोसेकेंड के बाद जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वेटिंग पीरियड कितना हो गया? चिप 2 पे, चिप 2 का वेटिंग पीरियड कितना हो गया? 2 नैनोसेकेंड, राइट? वेटिंग पीरियड इज 2 नैनोसेकेंड। मीन्स what we are trying to say कि if we are further reduce critical path time from 6 nanosecond to 5 nanosecond, again this chip 2 has to wait for 3 nanosecond to till the third sample will arrive. Are you getting this concept? है ना? तो हमारा ये एम क्या है? we want to reduce the computation time. We want to reduce the computation time, right? तो computation time reduce करने का हमने देखा था कि you can reduce the clock period, or you can increase the clock period, or you can reduce the critical path time. But यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि critical path time को reduce करने के बाद भी wait करना ही पड़ रहा है ना, right? तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम। ओके, किसी को डाउट है अभी? सुमति क्लियर है? ओके मैम, इसी में यही बोल रहा था मैं कि अपन जो ये वायर वाला पार्ट है, जो आउटपुट पैड से वायर से इनपुट पैड, ये पूरा मिला के 8 नैनोसेकेंड का डिले दे रहा है, राइट? तो इसको क्यों नहीं कम किया? कुछ हार्डवेयर चेंज करके वायर कुछ प्रॉपर्टीज होगी, उसका भी कुछ प्रॉपर्टीज होगा ना, तो उससे भी तो कम होता होगा कुछ। ये तो स्टैंडर्ड ही होगा ना रे, सीमॉस का है ना ये। अच्छा, ये सब सीमॉस के कॉन्सेप्ट्स है ना, ये स्टैंडर्ड ही है उनका। ये पूरा स्टडी रिसर्च करने के बाद ही उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए ना ये सब। तो अभी चल रहा होगा, अभी यू कैन डू फर्दर रिसर्च। यस, दिस कैन बी अ रिसर्च टॉपिक। यस मैम, दिस कैन बी अ रिसर्च टॉपिक। जहाँ पे भी हमें डाउट आया कि ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता, दैट विल बी योर रिसर्च टॉपिक, राइट? यस मैम। प्रॉब्लम्स आते हैं तभी रिसर्च होता है ना। देखो, पहले मोबाइल कितना बड़ा था आपका,
हैंडसेट कितना बड़ा आता था पहले, उसमें एक ये आता था, एंटीना आता था, है ना, लंबा वायर एंटीना, राइट? ठीक है, याद है क्या आपको? आप तब छोटे होंगे। यस मैम, देखा है। हाँ आप, यस मेरे पास तब था, तब मेरा बेटा बहुत छोटा था, एंड तुम लोग भी छोटे ही होंगे तो भी देखा होगा तुम लोगों ने बचपन में। तो उसके बाद क्या हो गया, फिर कॉम्पैक्टनेस की तरफ हम लोग जा रहे, है ना, 2G 3G 4G 5G, और कॉम्पैक्ट हो रही सिस्टम्स आपकी, है ना। तो कॉम्पैक्टनेस क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस VLSI टेक्नोलॉजी, राइट? VLSI टेक्नोलॉजी की वजह से कॉम्पैक्टनेस हो रहा है ना। अच्छा, कैन एनीवन टेल मी हाउ मेनी एंटीनाज आर देयर इन योर हैंडसेट? अगर किसी ने भी करेक्ट जवाब दिया ना तो आई विल गिव यू चॉकलेट, जब हम मिलेंगे तो याद दिलाना मुझे। एंटीनास कितने रहते हैं हैंडसेट में, ये एंड्रॉइड हैंडसेट में? मैम जितने भी कम्युनिकेशन वाले चीज होंगे उसके जैसे नॉर्मल एक जो सिम वाला वो होगा, फिर हर चीज का वाईफाई का अलग, ब्लूटूथ का अलग। हाँ तो हाउ मेनी? 5 to 10 में भी। नहीं ऐसा नहीं चलता रे, फिक्स चाहिए। 3 फिक्स नंबर बताओ ना, कितना मैम 3। कितने हेलो रहते हैं और कौन कौन से एप्लीकेशन के लिए रहते हैं? मैम, हेलो। हाँ अथर्व। वाईफाई, ब्लूटूथ ब्लूटूथ एक, वाईफाई एक ब्लूटूथ और वाईफाई, नेटवर्क एक, ऐसे 3। 3? हाँ ओके ओके, और कोई? दो? मैम जीपीएस का 4th। GPS, ओके, और होंगे ना, मतलब 4 ही अपने को कॉमन दिख रहे, और होंगे, हाँ वेरी तो करेंगे मैम, होंगे तो मतलब कितने होंगे, वही तो पूछ रही मैं, कितने रहते? 10 के आसपास। 10? एकदम नंबर नहीं पता। 10 के आसपास ठीक है, बट आपको ये टेक्निकल क्वेश्चन पूछा आपको, ठीक है, आप कोर कंपनी के लिए गए एंड आपका ये टेक्निकल क्वेश्चन है, सपोज कि कितने एंटीनाज रहते मोबाइल में, हैंडसेट में, क्या बोलेंगे आप? 13? चेतन बहुत ही आगे चला गया ये तो। एक कम्युनिकेशन के लिए और एक वाईफाई, ब्लूटूथ एंड ऑल, 4 इसेंशियल रहते शायद। ओके, मैम, एक इसका रेडियो का भी रहेगा, टोटल 4। यस यस, और मैम डिपेंड्स, वही मतलब डिपेंडिंग अलग अलग हैंडसेट्स अलग अलग फीचर होंगे, जैसे वैसा नहीं रहता, अलग अलग हैंडसेट नहीं। NFC वाला हर फोन में नहीं रहता, तो NFC का अलग एंटीना वो जिसमें है उसमें रहेगा, नियर फील्ड कनेक्शंस वाला। फिर और भी कुछ फीचर्स होंगे जो सब में नहीं है। अभी आगे चल के नियर बाय फील्ड में वायरलेस पावर वाला भी एक आ गया है, डेवलप हो रहा है, तो उसका एंटीना जिस फोन में है आगे वाले उसमें होगा, तो एंटीना तो वेरी करेंगे हाँ स्टैंडर्ड नहीं, सारी अभी कैसे। अभी आप जो अभी एंटीना यूज कर रहे हैं, सॉरी आप जो अभी हैंडसेट यूज कर रहे हैं, सपोज MI का है आपके पास, है ना, तो अभी तो Yes, फिलहाल नंबर ऑफ एंटीना सेम ही है, कोई भी मोबाइल रहे, 4G मैम 5G के लिए सेम ही एंटीनाज नेटवर्क है। वाला एक एंटीना जो अपना ये है, आई गेस इसका 5G मतलब जो 4G LTE वाला शायद अलग होगा, देन ब्लूटूथ, वाईफाई, जीपीएस, 4-5 तो होंगे मिनिमम। रेडियो ऐसा था, आपने बोला रेडियो का अलग होगा। हाँ, तन्वी बोल रही है 4। ओके, हो गया, सबके आंसर्स हो गए कि और किसी को बताना है कुछ?
अब मैं बताऊं? ब्लूटूथ वाईफाई रेडियो, यस. See, there are total 6 antennas. There are total 6 antennas present in your handset, mobile handset. Okay. Let me on my video. I will tell you कि antennas कहाँ रहते. दिख रहा है आपको? मोबाइल दिख रहा है मेरा? मैं दिख रही हूँ? स्क्रीन प्रेजेंट बंद करूँ क्या? यस मैम. दिख रही हूँ मैं? Am I visible? ठीक है ना. सी ये हैंडसेट दिख रहा है आपको? हैंडसेट दिखना चाहिए, मेरे दिखने का उतना ही नहीं है. हैंडसेट दिख रहा है, ये मोबाइल दिख रहा है. देखो अब क्या होता है, VLSI जो इंजीनियर्स रहते हैं ना, डिज़ाइन इंजीनियर्स, व्हाट दे डू, वो पहले क्या करते हैं, कोई भी सपोज नया डिज़ाइन आ रहा है मार्केट में, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले VLSI इंजीनियर्स क्या करते हैं, पहले वो अपना पूरा डिज़ाइन कर लेते हैं, है ना. तो पूरा कितना स्पेस लगेगा, यानी चिप साइज कितनी है, वो पूरा अपना डिज़ाइन कर लेंगे पहले. ओके. और फिर बाद में जो बचा कुचा एरिया रहता, सपोज इतने एरिया में उन्होंने डिज़ाइन कर लिया अपना पूरा स्ट्रक्चर, कैमरा वगैरह ये सब आ गया. ओके. और फिर बाद में जो बचा हुआ जगह रहता है, हाँ, तो फिर एंटीना पीपल विल मीन्स उनको एंटीना पीपल्स को फिर उतनी स्पेस मिलती है, कम स्पेस मिलती है. बट एंटीना पीपल विल हैव टू डिज़ाइन देयर एंटीना इन दैट ले स्पेस. जितनी भी स्पेस बेचारों को मिलती है, दे हैव टू डिज़ाइन दीज एंटीनाज इन दिस स्पेस. तो वो एंटीनाज कहाँ रहते हैं, स्पेस कहाँ रहती है, तो योर एंटीनाज विल बी हियर. एक एंटीना सपोज यहाँ पे है, दूसरा एंटीना यहाँ है, तीसरा ये यहाँ है, फोर्थ विल बी हियर, फिफ्थ विल बी हियर एंड सिक्स्थ विल बी हियर. तो ये कॉर्नर के एजेस में आपका पूरा एंटीनाज रहेंगे, ये पूरे 6 एंटीनाज. ओके. तो ये all 6 antennas are not interconnected to each other, separately they are present, है ना, सेपरेटली वो रहेंगे. और हर एक एप्लीकेशन के लिए एक एक एंटीना विल डेडिकेटेड टू दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन. वाईफाई है तो वो वाईफाई एंटीना ही वर्क करेगा. ओके. रेडियो है तो रेडियो वाला ही वर्क करेगा. लाइक दिस देर आर 6 एंटीनास, राइट. तो एंटीना पीपल्स, एंटीना इंजीनियर्स, तो उनका टास्क बहुत ही मीन्स अप्रिशिएबल रहता है कि बिकॉज दे डोंट हैव चॉइस कि कहाँ डिज़ाइन करे, कितना स्पेस है, उनको कोई चॉइस नहीं रहता है. उनको सिर्फ बताया रहता है कि बस अब आपको इतनी स्पेस मिलेगी, आप अपना एंटीना वो स्पेस में डिज़ाइन करो. देन दे हैव टू डिज़ाइन देयर एंटीना इन दैट स्पेस ओनली, राइट. तो अभी recently MIMO antennas are means in market, multiple input multiple output antennas. जैसे MIMO जो है ना, MIMO सिस्टम जो है, जैसे VLSI में भी यूज़ होता है, तो इट इज़ यूज्ड इन एंटीनाज ऑल्सो. एंटीना सिस्टम्स में भी MIMO एंटीनाज यूज़ हो रहे हैं अभी. तो बहुत रिसर्च चल रहा है MIMO एंटीनाज पे. तो MIMO एंटीनाज क्या करते हैं, there are suppose there are 4 or 5 application at a time. Some system have to perform some 4 or 5 application. Then that 4 or 5 application, that one antenna will work. एक MIMO एंटीना है तो वो एक MIMO यानी एक ही पैनल पे, एक ही पैनल है. सपोज ये पैनल है, मेरा एंटीना का पैनल है, तो एक ही पैनल में सब एंटीनाज रहेंगे, 1 2 3 4. सपोज 4 एप्लीकेशंस आर देयर, तो 1 2 3 4 एंटीनाज रहेंगे एंड दे विल परफॉर्म पैरेलली. MIMO सिस्टम पता है आपको, पैरेलल प्रोसेसिंग है. तो हर एक एंटीना डेडिकेटेडली वो अपने फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा. सपोज एक एंटीना वाईफाई है 2.4 गीगाहर्ट्ज पे है, दूसरा एंटीना और कोई फ्रीक्वेंसी पे सपोज 5.8 गीगाहर्ट्ज, या थर्ड एंटीना विल वर्क एट 9.4 gigahertz. Then they will perform their operations parallelly.
राइट। तो अपने मोबाइल में भी क्या है, मोबाइल में भी क्या हो रहा है, मोबाइल में भी सब ऑपरेशंस पैरेलली हो रहे हैं, कोई ऑपरेशन किसकी वजह से रुकता है क्या, ठीक है। मीन्स एट ए टाइम यू कैन परफॉर्म, आप वाईफाई भी ऑन कर सकते हैं, एट ए टाइम ब्लूटूथ भी ऑन कर सकते हैं, एक ब्लूटूथ एक एंटीना रहेगा ब्लूटूथ का भी, तो एट ए टाइम यू कैन perform all the operations by using all the antennas, right? So this is nothing but again your NEMO system. Okay, तो clear है। चलो आउट ऑफ द सिलेबस हो गया ये डिस्कशन, बट इट इज़ अच्छा नॉलेज, अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि कितने